Mutale, Shora. Bismillahirrahmanirrahim. Today we start the embryology on the urinary system, urogenital system. There are the two systems. One is the urinary system and genital system. Both are capacity the 100 दिया ना 100 के जगह म्यूट था करे तो को आवाज तो था हाँ recording on our starting lecture. Betul. Naik na side. बस lecture शुरू करने के चलिए. So with the urinary system and genital system, first we discuss the urinary system. Slide change. So urogenital system, functional urogenital system can be divided into the different component. One is the urinary system and other is the genital system. But embryologically and anatomically they are interconnected with each other. Both are derived from the intermediate mesoderm. We already discussed there is a mesoderm having a three part. One is a paroxysmal mesoderm, intermediate mesoderm, and a lateral plate mesoderm. So urogenital system is derived from the intermediate mesoderm, developed from the common mesodermal ridge, intermediate mesoderm. So initially the excretory duct of the both system enter in the common cavity of the cloaca. Cloaca is the part of the gut where the both system open in these cloaca. In this picture we see that this is the cloaca, this is the allantois. Allantois का lower part से फिर the formation of the bladder होती है, urinary bladder. आप इसमें देख सकती हैं कि this is the unsegmented intermediate mesoderm from the mesonephric system. There are the three systems by which the kidney is formed. One is the pronephric system, other is the mesonephric system, and third one is the mesonephric. Pronephric is a non-functional system, and the mesonephric also small time it is a functioning, then this is a disappear. So the mesonephric is the permanent kidney which functioning throughout the life. So urinary system, there is a slightly overlapping. Sir, speak loudly. Urinary system or the kidney system, three slightly overlapping system are involved in the formation of the urinary system. One is the pronephros, other is the mesonephros, and third one is the metanephros. Pronephros जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, नॉन फंक्शनिंग होता है और डिसअपियर हो जाता है, और मेसोनेफ्रोस जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए फंक्शन होता है और वो भी डिसअपियर हो जाता है. जो परमानेंट किडनी है वो है मेटानेफ्रोस. Metanephros form the permanent kidney. So in this picture we see that the mesoderm having a three part. One is the paroxysmal mesoderm, other is the intermediate mesoderm, third one is the lateral plate mesoderm. So जो paroxysmal mesoderm है वो तो vertebral column बनाएगा. जो main है intermediate mesoderm from the urogenital system. Both system are formed by the intermediate mesoderm. So pronephros, it is the beginning in the fourth week of the intrauterine life से pronephros की formation होगी. They form the 7 to 8 solid cell group in the cervical region. In the cervical region होते हैं cervical, thoracic, lumbar and sacral. तो जो pronephros है formation होती है 4th week में in the cervical region. These group form the vestigial excretory. Vestigial जो non functioning हो, disappear हो जाए, उसको कहेंगे excretory unit, and the nephrotome that regress before more caudal ones are formed. यानी कि
नीचे जैसे ही प्रोनेफ्रोस के बाद क्या होता है, मीजोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस की फॉर्मेशन होगी तो प्रोनेफ्रोस जो है नॉन फंक्शनिंग हो जाएगा. बाय द एंड ऑफ द 4th वीक all indication of this pronephros become a disappear. So this is the slide for the relation of the intermediate mesoderm. जैसे प्रोनेफ्रोज है ये आप देखें अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड यानी कि ये और ये अनसेगमेंटेड ये पोर्शन है, ये सेगमेंटेड पोर्शन है. तो प्रोनेफ्रोज जो है वो सेगमेंटेड पोर्शन और ये अनसेगमेंटेड है. ये प्रोनेफ्रोज और मीजोनेफ्रोज, ये नीचे है मेटानेफ्रोज. मेटानेफ्रोज जो है परमानेंट किडनी बनाएगा. ये जो मीजोनेफ्रोज प्रोनेफ्रोज है वो कुछ टाइम के लिए होगा, डिसअपीयर हो जाएगा. तो इनका रिलेशन ये सर्वाइकल रीजन में है, सर्वाइकल और अपर थोरेक्स, ये लोअर थोरेक्स और लंबर रीजन में, और ये लोअर लंबर रीजन में जो है अनसेगमेंटेड मेटानेफ्रिक सिस्टम जो जिससे परमानेंट किडनी की फॉर्मेशन होगी. इन द सर्वाइकल रीजन, इन अपर थोरेसिक रीजन, इंटरमीडिएट मेसोडर्म इज सेगमेंटेड. अब ये देखिए ये सेगमेंटेड है. इन द लोअर थोरेसिक एंड लंबर रीजन and the sacral region, it is a form a solid unsegmented mass of the tissue. The mesonephric, they form the mesonephric cord. Note that the longitudinal collecting duct, these are the longitudinal blue shape, this is the longitudinal collecting duct which is in the right side, which is also in the left side, initially formed initially by the pronephros but later by the mesonephros. और ये इसका पूरा सेगमेंट डिसअपीयर हो जाता है. इसका कुछ पोर्शन रिमेनेंट रहता है जो फर्दर उसकी फॉर्मेशन होती है और कुछ चीजें बनाते हैं, वो आपको लेटर. Excretory tubule of the pronephros and mesonephric system in the 5th week old embryo. Excretory system, दो सिस्टम होते हैं, one is the excretory system, other is the collecting system. Excretory system means nephron, nephron की फॉर्मेशन जो यूरिन की फॉर्मेशन करवाएगा उसको हम करेंगे एक्सक्रीट, सीक्रेट करता है यूरिन, उसको कहते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये यूरिन की फॉर्मेशन हो गई, अब ये जाके कलेक्टिंग होगा तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिंग सिस्टम. फर्दर आपको अगली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा. तो इसका एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल ऑफ द प्रोनेफ्रोज और मेसोनेफ्रोज, ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहा है, फिर ये जाके कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग सिस्टम में जाके ये अटैच होगा. The longitudinal collecting duct formed initially by the pronephros but later by the mesonephros. तो प्रोनेफ्रोस का हमने पढ़ दिया कि वो सेगमेंटेड होता है और डिसअपीयर हो जाता है, डिजेनरेट. मीजोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस एंड मीजोनेफ्रिक डक्ट, one is the mesonephric or mesonephric duct are derived from the intermediate mesoderm from the upper thorax to the upper lumbar segment. Early in the 4th week, the first excretory tubule. Excretory tubule मैंने कहा कि दो सिस्टम होते हैं, one is the excretory unit, other is the collecting unit. तो excretory tubule जो है वो excretory unit का पार्ट है जिसमें नेफ्रॉन की फॉर्मेशन होगी. नेफ्रॉन जो है यूरिन की फॉर्मेशन करवाता है. तो excretory tubule of the mesonephric कब बनेगा? अर्ली इन द 4th वीक में बनेगा. द लेंथ they lengthening rapidly form the S-shaped loop and acquire a tuft of the capillary. They will form the glomerulus at their medial extremity. अब ये पिक्चर देखें, ये टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज, ये एक एस शेप ट्यूब्यूल बना हुआ है, ये एक्सक्रीटरी यूनिट बन गया. मीजोनेफ्रिक से एक्सक्रीटरी यूनिट यानी कि नेफ्रॉन की फॉर्मेशन होगी और इसकी साइड में ये डॉर्सल मेजेंट्री में कैपिलरीज पड़ रहे हैं जो इसमें ग्रो कर रहे हैं और ये टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज बना रहे हैं. इसके अराउंड ये टिश्यू आ रहा है जो ब्रोमस कैप्सूल बना रहे हैं. ये तो फिर फॉर्मेशन होगी नेफ्रॉन की. नेफ्रॉन की जो डिस्टल एंड होगी वो अटैच होगी जाके कलेक्टिंग सिस्टम से. तो ये क्या करें, अर्ली इन द 4th वीक एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल मेसोनेफ्रिक का अपीयर होगा. रैपिडली उसमें लेंथनिंग होगी और एस शेप का लूप बनेगा और इस लूप के एस शेप की मीडियल साइड पे टफ्ट ऑफ द कैपिलरी विल फॉर्म the glomerulus at their medial extremity. For around the glomerulus, the tuft of the capillaries जो है glomerulus बना है. Around the glomerulus, the tubule form the Bowman's capsule and together these constitute the renal corpuscle. और laterally जो tubules है, जो excretory tubule है, उसके medial side पे capillaries आई और glomerulus बना और उसके बाद Bowman's capsule बना और बोमस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के कलेक्टिवली हम कह रहे हैं कि रीनल कार्पल्सल बना
और इस ये तो बना मीडियल साइड पे, और लेटरल साइड पे ट्यूब्यूल इंटर द लॉन्गिट्यूडल कलेक्टिंग डक्ट नोन एज अ मेसोनेफ्रिक और वोल्फिन डक्ट। मेसोनेफ्रिक का अदर नेम है वोल्फिन डक्ट। कभी कभी ये आपके पेपर में आ जाता है, राइट है शॉर्ट नोट ऑन द वोल्फिन डक्ट। So Wolfen duct or mesonephric duct is the same structure. So laterally जो ट्यूबुल है, जो excretory ट्यूबुल, excretory unit, दो यूनिट होते हैं, excretory unit and collecting unit। excretory unit से नेफ्रॉन बनेगा और collecting unit से माइनर कलेक्शन, मेजर कलेक्शन, पैलेस और पिरामिड की फॉर्मेशन होगी। यूरिन की फॉर्मेशन होगी नेफ्रॉन की जो डिस्टल पोर्शन होगा वो जाके अटैच होगा जो पैराक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पे। तो laterally tubule enter the longitudinal collecting duct known as the mesonephric or Wolfin duct. So this is the picture already we discussed. On the medial side, the tuft of the capillaries are joined together and form the glomerula. Around the glomerula, the tissue, mesenchymal tissue. Around this, they form the Bowman's. Thank you, sir. Bowman's capsule, and collectively we call it as renal corpuscles। और ये आपका ये नेफ्रॉन की फॉर्मेशन हो रही है और इलांगेटेड हो गया है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल। इसी तरह पूरी नेफ्रॉन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो और ये लेटरल साइड पे जाके अटैच होगा मेसोनेफ्रिक डक्ट से। मेसोनेफ्रिक डक्ट जो कलेक्टिंग सिस्टम और कलेक्टिंग यूनिट ऑफ द किडनी, कलेक्टिंग यूनिट में क्या होगा, पिरामिड होगा, माइनर कैलेक्सिस होगी, मेजर कैलेक्सिस होगी और पेल्विस होगी। द अपीयरेंस ऑफ द बोमस कैप्सूल्स और गोनोडल रिज, ये आप गोनेडल रिज है जिससे गोनेड्स बने हैं। गोनेड्स कौन से हैं, ओवरी एंड टेस्टिस। जब उसकी फॉर्मेशन कर रहे पढ़ेंगे हम एम्ब्रियोलॉजी तो उसमें डिस्कस करेंगे। आप इस पिक्चर में देखें कि यहाँ पे ये किडनी की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे ये गोनेड्स की फॉर्मेशन हो रही है। और किडनी की नॉर्मल जो परमानेंट किडनी है वो पेल्विक में बनती है और असेंड होती है, और नॉर्मल जो गोनेड्स होते हैं वो किडनी की पोजीशन में लंबर रीजन में होते हैं, फॉर्मेशन होती है और डिसेंड होती हैं पेल्विस में। Appearance of the Bowman's capsule and gonadal ridge, the mesonephric and gonads are attached to the posterior abdominal wall by the broad urogenital mesentery। ये आप broad urogenital mesentery है, ये पीछे उसके साथ अटैच है। तो in the middle of the second month, the mesonephric form a large oval organ on the each side of the midline। मिड लाइन में यानी कि राइट साइड की किडनी होगी और लेफ्ट साइड की किडनी होगी। इसी तरह जो गोनेड्स जो हैं, ओवरी और टेस्टिस, वो भी राइट साइड के भी होंगे और लेफ्ट साइड के भी होंगे। सिंस द डेवलपमेंट ऑफ द गोनेड इज ऑन इट्स medial medial side, the ridge formed by the both organ known as a urogenital ridge। The caudal tubules are still differentiated, the caudal portion is still differentiated, and cranial tubule and glomerula show the degenerative changes, and by the end of the second month the majority have disappeared। तो फर्स्ट था प्रोनेफ्रस जो बिल्कुल नॉन फंक्शनिंग था, इनिशियली फेज में भी नॉन फंक्शनिंग था और वो डिसअपियर हो जाता है। और मेसोनेफ्रस जो है वो सम अप टू द सेकंड मंथ तक वो फंक्शनिंग होता है। इसी तरह ग्लोमेरुला भी बनाता है और पूरा एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वो सारे कलेक्टिंग यूनिट एक्सक्रीटरी यूनिट बनाएगा और सेकंड मंथ में ये डिसअपियर हो जाएगा। In the male, a few of the caudal tubule of the mesonephric duct persistent। मेल में जो है जो mesonephric duct थी उसका पार्ट्स कुछ persistent रहेगा जो आगे चल के पार्टिसिपेट करेगा in the formation of the genital system। genital system या जो गोनेड्स हैं वो तो ऊपर बनेंगे, जो जेनाइटल डक्ट्स होती हैं, यूरिथ्रा है और एपिडाइडाइमस है या एजेकुलेटरी डक्ट है, ये सारे जो है कलेक्टिवली कॉल्ड द जेनाइटल सिस्टम। दे फॉर्म बाय द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मेसोनेफ्रिक बट दे डिसअपियर इन द फीमेल। फीमेल में ये पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है और फीमेल जो में है जो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट होती है वो परसिस्टेंट रहती है और मेल में पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट डिसअपियर हो जाती है। तो ये डिफरेंस पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन भी रेज हो जाता है। तो मेसोनेफ्रिक डक्ट इनिशियली तो कलेक्टिंग यूनिट बना रहा था और लेटर ऑन दे डिसअपियर, सम पार्ट persistent which take part in the formation of the genital system, while in the female they totally whole is disappeared।
दिस इज द रिलेशन ऑफ द गोनेट्स एंड मीजोनेफ्रिक। आप ये देखें कि ये मीजोनेफ्रिक है राइट साइड और लेफ्ट साइड का, ये आपकी डार्सल मेजेंट्री है, इसके मीडियल साइड पे ये गोनेट्स पड़े हुए हैं जहाँ से टेस्टिस और ओवरी की फॉर्मेशन बनेगी। और ये दो डक्ट हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट एंड पेरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। और जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये इनिशियली फेज में मीजोनेफ्रिक में थोड़ा सा वो एक्सक्रीटरी यूनिट बनाता है, लेकिन लास्ट में ये पूरा डिसअपियर हो जाता है, एक्सेप्ट उसका सम पार्ट बनता है जो यूरेट्रिक बट बनाता है, आगे चल के वो जेनाइटल सिस्टम की फॉर्मेशन बनाएगा। और फीमेल में ये टोटली डिसअपियर हो जाता है, while the paramesonephric duct totally degenerate or disappear in the male and the persistent in the female. So this is the permanent kidney, from where the permanent kidney form. So there are the two systems, pronephros, mesonephros. Well, last one is the metanephros. Metanephros is the responsible for the permanent kidney, definitive kidney, the third urinary organ. फर्स्ट कौन सा था? प्रोनेफ्रोस था, सेकंड मीजोनेफ्रोस था, थर्ड यूरिनरी ऑर्गन है मेटानेफ्रोस। मेटानेफ्रोस आर परमानेंट किडनी appear in the fifth week. The excretory unit means formation of the nephron की जो formation होगी develop from the metanephros mesoderm in the same manner as in the mesonephron। जैसे mesonephron में था medial side पे एस शेप स्ट्रक्चर बन रहा था, फिर उसमें कैपिलरी की टफिंग हो रही थी जो ग्लोमेरुला बना रहा था, इसी तरह मेटानेफ्रोस में एक्सक्रीटरी यूनिट की फॉर्मेशन होगी और फिर वो बोमस कैप्सूल बनेगा, इलांगेशन होगी और डिस्टली ये जाके कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच हो जाएगा। तो एक्सक्रीटरी यूनिट डेवलप फ्रॉम द मेटानेफ्रिक मेसोडर्म इन द सेम मैनर एज इन द मेसोनेफ्रिक सिस्टम। द डेवलपमेंट ऑफ द डक्ट सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द अदर किडनी। सो डेवलपमेंट ऑफ द जो डक्ट्स हैं तो उसकी हम फॉर्मेशन, तो ये आप देखें कि इसका जो लोअर पोर्शन ऑफ द मेसोनेफ्रिक डक्ट है वहां से एक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है जिसको हम यूरेट्रिक बड कह रहे हैं, और यूरेट्रिक बड से पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द किडनी का फॉर्मेशन होगी। और ब्लास्टिमा से एक्सक्रीटरी यूनिट बना और यूरेट्रिक बड से कलेक्टिंग यूनिट बनेगा। कलेक्टिंग यूनिट में क्या होता है? पेल्विस होता है, माइनर और मेजर कैलेक्सिस होती है और पिरामिड होती है। और जो एक्सक्रीटरी यूनिट है नेफ्रॉन की इलांगेशन होगी तो नेफ्रॉन का पूरा पार्ट प्रॉक्सिमल कल्विनेटरी ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, थिक लूप ऑफ हेनले, थिन लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, दे आर द फॉर्म्ड बाय द मेटानेफ्रस। होल नेफ्रॉन इज फॉर्म्ड बाय द मेटानेफ्रस। दिस इज रिलेशन विद द हाइंड कट। ये आप देखें हाइंड कट पड़ा हुआ है और ये मेसोनेफ्रिक पड़ा हुआ है, ये पेरामेसोनेफ्रिक डक्ट है जो कुछ पार्ट के लिए एक्सक्रीटरी यूनिट बनाता है, मेसोनेफ्रिक का फिर डिसअपियर हो जाता है, डिस्टल पोर्शन में रिमेनेंट रहता है जो जेनाइटल सिस्टम की फॉर्मेशन करवाएगा, और डिस्टल लूप से ये यूरेट्रिक बड की फॉर्मेशन होती है, और ये यूरेट्रिक बड से फिर कलेक्टिंग सिस्टम, कलेक्टिंग यूनिट ऑफ द किडनी बनेगा। तो डिस्टल से यूरेट्रिक बड था, यूरेट्रिक बड ब्लास्टिमा के ये देखेंगे केप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ए में आप देखें 6 वीक में ये यूरेट्रिक बड ब्लास्टिमा मेटानेफ्रिक टिश्यू में पेनिट्रेट किया हुआ है। ये आगे चल के अपर और लोअर पोर्शन में क्रेनियल और कार्डल पोर्शन में डिवाइड हो रहा है। ये रीनल पेल्विस है, आगे चल के ये मेजर कलेक्सिस, माइनर कलेक्सिस, और आगे चल के ये पिरामिड्स की फॉर्मेशन बनेगा। और ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो जाके अटैच होंगे डिस्टल पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। डिस्टल पोर्शन नेफ्रॉन की यूरिन फॉर्मेशन होगी, ये इसके साथ अटैच कलेक्ट करेगा ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, फिर यूरिन की इसी तरह यूरिनरी पेल्विस में आएगा, माइनर कलेक्शन, मेजर कलेक्शन, फिर पेल्विस, फिर यूरिटर में ब्लेडर से फिर यूरिथ्रा में चला जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द रीनल पेल्विस, collections and collecting tubules of the metanephros. Collecting tubule, these are the collecting tubule or collecting unit. दो unit है, one is the excretory unit, other is the collecting unit. Excretory unit is formed by the permanent kidney का जो है मेटानेफ्रोस से, ब्लास्टिमा से बन रहा है, और जो कलेक्टिंग सिस्टम है, कलेक्टिंग यूनिट है, वो यूरेट्रिक बड से बन रहा है, यूरेट्रिक बड फर्दर उसमें। सो कलेक्टिंग सिस्टम, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द परमानेंट किडनी डेवलप फ्रॉम द यूरेट्रिक बड। मैंने आपको बात, बड पेनिट्रेट द मेटानेफ्रिक टिश्यू और बड डायलेटेड एंड फॉर्म द परमेंटर रीनल पेल्विस बनाएगा, स्प्लिट होगा क्रेनियल और कार्डल पोर्शन में, और फ्यूचर मेजर कलेक्सिस की फॉर्मेशन होगी। ईच मेजर कलेक्सिस फॉर्म द 2 न्यू बड,
while penetrating the metanephric tissue. Metanephric tissue the cape like स्ट्रक्चर उसके ऊपर पड़ी हुई है, तो ये फर्दर यूरेटिक बट डायलेट हुआ तो रीनल पेल्विस बना, रीनल पेल्विस क्रेनियल और कार्डल पोर्शन में डिवाइड होगा तो वो मेजर क्लेक्सिस बनाएगा, मेजर क्लेक्सिस में फर्दर स्प्लिटिंग होगी, फर्दर डिवाइडेशन होगी, वो माइनर क्लेक्सिस बनाएगा, माइनर क्लेक्सिस अगेन splitting and dividing and they form the tubules or collecting tubules. So the calyxes are two new bud while the penetrating the blana, the bud can continue to the subdivided until टोलियो और मोर, ये जो सब डिवीजन हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, पहले यूरेट्रिक बट स्प्लिट हुआ, रीनल पेल्विस बना, फिर रीनल पेल्विस स्प्लिट हुआ, मेजर क्लेक्सिस बना, फिर मेजर क्लेक्सिस स्प्लिट हुआ, माइनर क्लेक्सिस बना, फिर माइनर क्लेक्सिस स्प्लिट हुआ, फिर ये जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बना, तो ये जो सब डिवीजन होती है अप टू द टोलियो or more than tolio generation of the tubule have a form. Meanwhile, at the periphery, more tubule form until the end of the 5th month तक इसकी जो है splitting होती रहती है. तो tubules of the second order enlarge and absorb of these third and fourth generation, ये टोलियो जनरेशन तक ये सब डिवीजन हो रही है. अप टू द 4th जनरेशन जो है वो माइनर कलेक्सेस की फॉर्मेशन होती है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है रिमेनिंग जो है 5-8 जो है उसमें फर्दर जो है तो वो रीनल पिरामिड की फॉर्मेशन बने. तो अब यूरेट्रिक बड से क्या क्या बनेगा, यूरेटर बनेगा, रीनल पेल्विस बनेगा, मेजर और माइनर कलेक्सेस बनेगा और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनेगा. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कितने होंगे, 1 to 3 मिलियंस. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल किसके साथ अटैच होंगे, डिस्टल पोर्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी यूनिट. एक्सक्रीटरी यूनिट हम किसको कह रहे हैं, नेफ्रॉन को कह रहे हैं. नेफ्रॉन का जो डिस्टल पोर्शन जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ अटैच होते हैं, तो जितनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है उतने ही नेफ्रॉन होते हैं. तो नेफ्रॉन भी नियर अबाउट 1 मिलियन to 3 मिलियन ये रेंज है, कभी 1.5 मिलियन होगा, कभी 2 मिलियन होगा, कभी 3 मिलियन होगा. तो ये अप टू द 3 मिलियन तक ईच किडनी कंटेन द नेफ्रॉन, up to the 3 million each kidney contain the collecting tubule. ये आप देखें इनिशियली ये था कि यूरेट्रिक बड था और ये इसके ऊपर मेटानेफ्रिक टिश्यू इसके साथ अटैच था और ये इसमें फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग करके ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बना रहा है और कलेक्टिंग यूनिट बना रहा है. और ब्लू कलर का आप देख रहे हैं कि ये इनिशियली ये ब्लास्टिमा था, ब्लास्टिमा में फिर एस शेप स्ट्रक्चर बना, एस शेप के स्ट्रक्चर के मीडियल साइड पे कैपिलरीज बने, ये बोमर्स कैप्सूल बने, प्रॉक्सिमल लूप ऑफ वेनल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल बना, फिर डिस्टल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल असेंडिंग लूप बने और पूरी नेफ्रॉन की ये फॉर्मेशन होगी. और नेफ्रॉन का जो डिस्टल पोर्शन है वो किसके साथ अटैच है, डिस्टल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल जिसको हम कहते हैं वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ अटैच है. तो जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स 1 मिलियन to 3 मिलियन होते हैं तो नेफ्रॉन भी 1 मिलियन to 3 मिलियन per each kidney में प्रोड्यूस है. The each newly formed collecting tubule is covered at its distal end by the metanephric tissue cape. वो हमने देखा कि नीचे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, यूरेटिक बड था, उसके ऊपर मेटानेफ्रिक टिश्यू जो केप लाइक स्ट्रक्चर थी, फिर फर्दर उसमें excretory unit जैसे हम पहले बताया था, cell of the tissue cap form the small vesicle, renal vesicle give rise the small S-shaped tubule, capillary grow into the pocket at the end of the S-shape and the medial end of the S-shape and differentiated into glomeruli. Glomeruli के around एक tissue होता है जो बोमस कैप्सूल बनाएगा. These tubules together with their glomeruli form the nephron. ये जो ट्यूब्यूल बने हैं और वो पूरा कैसे नेफ्रॉन बनेगा या एक्सक्रीटरी यूनिट. नेफ्रॉन का अदर नेम है एक्सक्रीटरी यूनिट. और जो रीनल पेल्विस है, माइनर कलेक्सेस, मेजर कलेक्सेस, पिरामिड जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, उसको कलेक्टिवली हम कह रहे हैं कि ये वो कलेक्टिंग यूनिट है, कलेक्टिंग सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी यूनिट या कलेक्टिंग यूनिट. तो ये आप दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है. ये इसको परमानेंट किडनी में दो सिस्टम है, वन इज वो उसमें भी जो मेसोनेफ्रिक था उसमें भी ये दोनों सिस्टम थे. तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी यूनिट को नेफ्रॉन को एक्सक्रीटरी यूनिट कहेंगे और जो कलेक्टिंग यूनिट है उसमें जो माइनर मेजर कलेक्सेस हैं उस सारों को ये कहें.
proximal end of the each nephron Bowman's capsule, proximal end पे भी ये Bowman's capsule होता है, and distal end form the open connection with one of the collecting tubule. डिस्टल एंड जो है नेफ्रॉन का, वो कलेक्टिंग यूनिट का जो लास्ट पोर्शन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसके साथ कनेक्शन होगा, एस्टेब्लिश होगा, और इसी तरह पैसेज फ्रॉम द बोमस कैप्सूल to the collecting unit of the urine, they make the pathway. Continuous lengthening of the excretory tubule resulting in the formation of the proximal cannula, जो नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं proximal cannula में loop of Henle में फिर thick और thin loop of Henle होते हैं, और distal cannulating tubule. Distal cannulating tubule या collecting tubules जो है is the same thing which is connected with the collecting tubule. Distal cannulating tubule is the distal portion of the nephron, while the collecting tubule is the distal portion of the excretory unit. So excretory unit for kidney develop from the two sources. One is the metanephric mesonephros, which provide the excretory unit, and other is the ureteric bud, which give rise the collecting system of the collecting system या collecting unit. Collecting unit में major collection, minor collection, pelvis और ये pyramid और collecting tubules ये जो है nephron are formed until the birth. जब तक बर्थ बेबी की हो गई, जितने नेफ्रॉन बनने थे वो बन गए, बर्थ के बाद फिर नेफ्रॉन की फॉर्मेशन नहीं होगी. एट वुड टाइम देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 1 million to the 3 million of the nephron present in the each kidney. यूरिन की जो फॉर्मेशन बिगिन होगी वो अर्ली इन द गेस्टेशन, सून आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी. ग्लोमेरुलर कैपिलरी से इन्फिल्ट्रेशन होती है, वो जाके यूरिन बनता है. जैसे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बन जाएंगे तो यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है. तो वो 10th to 12th वीक तक ग्लोमेरुलर कैपिलरीज यानी कि 2.5 से 3 मंथ में यूरिन की फॉर्मेशन होती है. इंट्रायूट्राइन लाइफ में बेबी की जब 2.5 मंथ का होता है या 3 मंथ का होता है तो यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है. एट द बर्थ द किडनी हैव द लोब्यूलेटेड यानी कि ओवल शेप होती है, अपीयरेंस होती है, बट लोब्यूलेशन डिसअपियर ड्यूरिंग द इन्फेंसी के दौरान बेबी की ग्रोथ होती है तो ये लोब्यूलेटेड, elongated and result of the further growth of the nephron, although there is no increase their number. nephron की lengthening तो होगी लेकिन उसमें further proliferation lengthening होगी, लेकिन उसका number increase नहीं होगा. 1 million से 3 million जितना बन गया at the time of the birth. After the birth there is no formation of the nephron. ये मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि मॉलिक्यूलर जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं, तो जो पीएचडी करेंगे वो तो इनका पूरा का पूरा प्रोसेस उनको पता होना चाहिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये कुछ फैक्टर हैं, मॉलिक्यूलर फैक्टर, जो इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है. तो ये जैसे VT1 है, FG-F2 है, GDN है, BMP7 है. These are the molecular factor which interconnected with each other. कुछ इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी कि यूरेटरी बड से निकलते हैं जो इसमें प्रोलिफरेशन करवाएंगे मेटानेफ्रिक टिश्यू में, और कुछ मेटानेफ्रिक टिश्यू से निकलते हैं जो इस यूरेटरी बड को अपना इंफ्लुएंस देते हैं, फर्दर उसमें डिवीजन होती हैं. तो इनके जो 4-5 फैक्टर हैं, तो इनका सिर्फ आपको नाम याद होना चाहिए कि those factor which help in the formation of the urinary urogenital system, both system urinary and genital system. तो इनकी ये आपके वो सब चैप्टर में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी कोई अब ज्यादातर नहीं पूछा जाता है कि कौन सा फैक्टर कहाँ से निकलता है और किसको कहता है. कलेक्टिवली आपको फैक्टर का नाम होना चाहिए. ये सर कुछ फैक्टर हैं जो अपना इन्फ्लुएंस देते हैं. कुछ यूरेटरी बड से निकलते हैं, कुछ ब्लास्टिमा से निकलते हैं. दे इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दे इन्फ्लुएंस each other and proliferation and further growth of the kidney and other excretory unit and collecting unit की formation होगी. तो ये सारे about is तो अब this is the all about the embryology of the किडनी की फॉर्मेशन के लिए. और क्लिनिकल कोरिलेशन ये है कि क्लिनिकली रीनल ट्यूमर्स जो है वो बच्चों में कॉमन होता है. रीनल ट्यूमर इसलिए होता है उसमें विलियम्स ट्यूमर जो है नॉर्मल कॉमन है,
विलियम्स ट्यूमर, ये जो जेनेटिक मॉलिक्यूलर फैक्टर हैं 4-5, इनमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, कुछ रिलीज ही नहीं होती हैं और थोड़ा एबनॉर्मलिटीज होती हैं, तो उसकी वजह से विलियम्स ट्यूमर्स की फॉर्मेशन होती है। दूसरी है रीनल डिस्प्लेजिया। रीनल डिस्प्लेजिया में यानी कि मल्टीसिस्टिक किडनी, डिस्प्लास्टिक किडनी, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी और ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी, ये कॉमन है, ये भी इसके है। और ज़्यादातर जो आपको वाइवा में पूछा जाता है वो ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ द यूरिटर, यूरिट्रिक बड दो में डिवाइड हो जाए तो उसको हम डुप्लीकेशन ऑफ द यूरिटर कहते हैं। फिर वो पार्शियल डुप्लीकेशन होती है और ये complete duplication है। One ureter open into the bladder and other open in the ectopic। ectopic में वो कभी कभी अगर फीमेल है तो वजाइना में जाके ओपन होता है। यहाँ जो एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर जो हमारी यूरिनरी कॉन्टिनेंसी है वो मेंटेन करता है। अगर एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर से आगे ये इंस्फिंक्टर, ये जो यूरिटर जाके ओपन होगा तो वो कॉन्टिनेंस नहीं रहेगा और इनकॉन्टिनेंस होगा। कॉन्टिनेंस क्या है कि हमारे ब्लेडर की कैपेसिटी है 4 से 500 ml तक वो यूरिन को होल्ड करता है। फिर हमें सिग्नल आता है कि यूरिन करना चाहिए, फिर हम स्पेसिफिक साइड देके फिर यूरिन पास करते हैं, तो ये हमारी कॉन्टिनेंसी बरकरार होती है। वो कॉन्टिनेंसी बरकरार कौन करता है? एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। अगर एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर के जो यूरिटर है उससे नीचे जाके ओपन हो तो एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर उस पर इफेक्ट नहीं करेगा और पेशेंट हमारे प्रेजेंट करेगा इनकॉन्टिनेंसी। तो आपको कॉन्टिनेंसी और इनकॉन्टिनेंसी का पता होना चाहिए। इस पिक्चर में क्लियर है, ये कंप्लीट डुप्लीकेशन ऑफ द यूरिटर है, ये पार्शियल डबल यूरिटर है, यानी कि ऊपर से ये दो है, नीचे फिर ये आपस में एक है। ये एक्टोपिक साइट है, एक तो यूरिथ्रा है, फीमेल में यूरिथ्रा में जाके अटैच है और ये वजाइना से, और यहाँ पे एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर जो ये देखो नॉर्मल जो यूरिटर है वो ब्लेडर के में जाके ओपन होता है। ब्लेडर की कैपेसिटी है 4 से 500 ml तक यूरिन को होल्ड करता है। जब 500 ml से तो सिग्नल हमारे ब्रेन पे जाता है और हमें डिजायर होती है यूरिन की, और हम स्पेसिफिक सुइटेबल जगह देख के यूरिन को पास करते हैं। और ये स्पेसिफिक और सुइटेबल जगह ढूंढने के लिए तब तक जो होल्ड करता है यूरिन को ये एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर है जो करता है। अगर एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर से ये यूरिटर हमारा नीचे लगा हुआ है, एक्टोपिक है, एबनॉर्मल की है, तो ये इनकॉन्टिनेंसी। दिस इज अ क्लिनिकल नॉट। पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया, तो जो किडनी की फॉर्मेशन होती है वो पेल्विस में होती है, फिर असेंड होती है लंबर रीजन में, और जो गोनेट्स है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो लंबर रीजन में होती है, फिर वो नीचे डिसेंड करती है। किडनी इनिशियली इन द पेल्विक रीजन, later shift to the more cranial position in the abdomen. This ascent of the kidney is caused by the बॉडी कर्वेचर एंड ग्रोथ। बॉडी का जो कर्वेचर और बॉडी की ग्रोथ जो होती है उसकी वजह से ये किडनी लंबर रीजन पर मूव करती है। तो इन द पेल्विस द मेटानेफ्रॉक्स रिसीव द आर्टीरियल। पेल्विस में बनती है तो वो जो पेल्विक रीजन में एरोटा है वहां से अपनी जो ब्रांच है, आर्टीरियल ब्रांच है, वो उससे वो ब्रांच लेती है और ब्लड सप्लाई करती है। और ड्यूरिंग द असेंट ऑफ द एब्डोमेन कभी कभी एसेसरी जो पेल्विक रीजन में आर्टीरियल सप्लाई है वो परसिस्टेंट होती है। जैसे किडनी असेट करती है तो उसमें इंटरप्टेड हो जाती है। एबनॉर्मलिटी हार्शू किडनी। हार्शू किडनी मींस लोअर पोल ऑफ द किडनी आर द जॉइंट। नॉर्मली जो है किडनी बोथ आर द सेपरेटेड, वन इज द राइट साइड एंड द अदर लेफ्ट साइड। और कंजेनाइटल एनॉमलीज होती है जिसमें लोअर पोल ऑफ द बोथ किडनी आर जॉइंट टुगेदर, दे कॉल्ड एज हार्शू किडनी। हार्शू किडनी जैसे अपवर्ड जाएगी तो बीच में इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है उसमें ये इंटरप्टेड हो जाएगी, तो लेवर वेसल मोस्टली जो है वो वेसल डिजेनरेट हो जाती है, बट सम टाइम दे रिमेन persistent and
ये देखिए आप बेटा नेफ्रिक टिश्यू परमानेंट किडनी यहाँ पे बन रही है और ये जैसे बॉडी की ग्रोथ हो रही है तो ये असेंड हो रहा है और ये जो गोनेट्स हैं वो लंबर रीजन पे बन रहे हैं और वो इन्हीं later on they descend into the pelvis while the kidney they ascend from the pelvis to the lumbar region. This difference should be आपको मेमोराइज हो तो वो ये है हार्शू की किडनी नॉर्मल जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड पे किडनी होती है और सेपरेटेड होती है कंजेनिटल एनॉमलीज होती है कि लोअर पोल ऑफ द किडनी आर ज्वाइन टुगेदर कॉल्ड एज ए हार्शू किडनी हार्शू किडनी तो ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो हो रही है जैसे ये असेंड होगी तो इसमें ये इंटरप्टेड हो जाएगी और दूसरी जो जो का पेल्विक रीजन में वेसल थी वो डीजनरेट हो जाती है कभी कभी वो persistent रहती है तो वो उसके लिए भी तो क्लिनिकल एनॉमलीज में pelvic kidney हार्शू किडनी एंड accessory renal arteries accessory renal arteries ये ड्यूरिंग सर्जरी किडनी की में ये इमरजेंसी हो जाती है कि सर्जन असेस नहीं कर सकता है वो अपनी जो नॉर्मल आर्टीरियल सप्लाई होती है रीनल आर्टरी को सेव करता है कभी कभी ये एक्सेसरी आर्टरी होती है तो उसकी डैमेज हो जाती है तो ये ब्लीडिंग होती है function of the kidney you are know the function of the kidney one is the main function is the formation of the urine but the other function जो intrauterine life में urine is passed into the amniotic cavity जो लास्ट जो 6 मंथ के बाद जो है मेजर पोर्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो यूरिन का होता है बेबी जो है इंट्रायूटरल लाइफ में यूरिन करता है फिर वो ही सालो करता है वो सालो करता है तो वो एमनियोटिक कैविटी में जाता है और एमनियोटिक कैविटी का फिर आपको पता है कि वो फ्लूइड का क्या फंक्शन है वो जो बेबी को एक कुशन प्रोवाइड करता है वो इजीली ग्रोथ होती है अगर एमनियोटिक फ्लूइड ना हो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है और बैलून में कोई अंदर चीज हो वो इजीली अपनी ग्रोथ में अगर नहीं हो तो वो कोलैप्स होगी तो उसकी भी एनामलीज में फिर ये एम्पुटेशन ऑफ द फिंगर और एम्पुटेशन ऑफ द लेग ये एनामलीज है तो फ्लूइड इज सॉलोड बाय द फीटस एंड रिसाइकलिंग थ्रू द फीटस सॉलो करेगा फिर ये एमनियोटिक कैविटी में भी जाएगा और एब्जॉर्ब भी होगा फिर रिसाइकलिंग होगा ड्यूरिंग द फीटल लाइफ the kidney is not responsible for the excretion of the waste product excretion and the adult life kidney is responsible one एक तो फंक्शन था तो यूरिन की फॉर्मेशन कर रहा थी एडल्ट लाइफ में दूसरा किडनी का फंक्शन ये है कि वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रिएशन करती है लेकिन इंट्रायूटरल लाइफ में ये जो फंक्शन है वो प्लेसेंटा सर्व करता है आफ्टर द बर्थ किडनी विल परफॉर्म द एक्सक्रिएशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ब्लेडर और यूरिथ्रा की फिर एम्ब्रियोलॉजी हम कल इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट द किडनी फॉर्मेशन तो 3 सिस्टम थे प्रोनेफ्रोल मेसोनेफ्रोल और मेटानेफ्रोल तो प्रोनेफ्रोल से वो इनिशियली फेज में ही कभी वो फंक्शनिंग नहीं रहा और डिसअपियर हो जाता है और जो मेटानेफ्रोज है वो कुछ टाइम के लिए फंक्शनिंग होता है फिर डिजेनरेट और डिसअपियर हो जाता है और जो परमानेंट किडनी है वो मेटानेफ्रोज से बनेगी तो जिसको हम ब्लास्टिमा कह रहे हैं और यूरिट्रिक बड से यूरिट्रिक बड जो है मीजोनेफ्रिक का लोअर पोर्शन से एक बड अराइज हो रहा है जिसको हम यूरिट्रिक बड कर रहे हैं जो कलेक्टिंग यूनिट ऑफ द किडनी बनाए गए एक तो एक्सक्रीटरी यूनिट जिसको हम नेफ्रॉन कर रहे हैं और दूसरा एक कलेक्टिंग सिस्टम सो inshallah next we discuss the embryology of the bladder and the urethra. Thank you, Beta.